السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں گوہر اشرت۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز ہوگا اور سب سے پہلے بات ہوگی آج کے دن کی مناسبت سے۔ کراچی میں یوم دفاع کی خصوصی تقریب مزار قائد پر منعقد کی گئی۔ یوم دفاع پر ایئر وائس مارشل شہریار خان کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔ بھارت کو خبردار کر دیا گیا کہ اگلی بار اسکور 6-0 نہیں بلکہ 60-0 ہوگا۔ کراچی میں یوم دفاع کی خصوصی تقریب مزار قائد پر منعقد ہوئی، جبکہ یوم دفاع پر ایئر وائس مارشل شہریار خان کا بڑا بیان سامنے آیا۔ کہا کہ بھارت کو خبردار کرتے ہیں کہ اگلی بار اسکور 6-0 نہیں بلکہ 60-0 ہوگا۔ مزار قائد پر یوم دفاع کی پروقار تقریب۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر گارڈز کی تبدیلی ہوئی۔ پاک فضائیہ کی اصغر خان اکیڈمی کے گارڈز نے فرائض سنبھالے۔ ایئر وائس مارشل نے کہا 6 ستمبر کو پاک افواج نے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے۔ 6 ستمبر ہمیں ہر سال اس عظیم دن کی یاد دلاتا ہے جب ہماری بہادر افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا کر اس وطن عزیز کا دفاع کیا۔ یہ دن نہ صرف ایک جنگی مارکے کی یاد ہے بلکہ ہمارے جذبے اتحاد اور قربانی کی بھی علامت ہے۔ ان کا کہنا تھا ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔ پاک فضائیہ عوام کی امیدوں پر پورا اتری ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج بالعموم اور پاک فضائیہ بالخصوص ہر میدان میں پاکستان کی غیور عوام کی امیدوں پر پورا اتری ہے۔ ماضی قریب میں ہونے والی آپریشن بنیان مرصوص نے 6 ستمبر 1965 کی یاد تازہ کی اور یہ ثابت کیا کہ ہماری مسلح افواج اور دلیر عوام شانہ بشانہ کھڑے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس موقع پر کور کمانڈر اور ٹی جی رینجرز نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کر کے کتاب میں تاثرات درج کیے۔ کفیل احمد، بول نیوز، کراچی۔ مارکہ حق کے ہیروز کو پاک نیوی کا سلام۔ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران نیوی کے جانباز ضابطوں نے آبی حدود کا کامیاب دفاع کر کے تاریخ رقم کر دی۔ مارکہ حق میں ہر محاذ پر دشمن کو دھول چٹانے والے جانباز ہیروز کو سلام۔ وائس ایڈمرل راجہ عرب نواز نے مارکہ حق میں کامیابیوں کا تذکرہ کیا۔ کہا نیول چیف نے آپریشن کے دوران بحریہ کی بھرپور رہنمائی کی۔ جو مارکہ حق اور بنیان مرصوص کے دوران پاکستان نیوی کے جتنے آپریشن سے میں نے اوورسی کیے انڈر دی اسٹریٹجک گائیڈنس آف چیف آف دی نیول اسٹاف۔ الحمدللہ نیوی واز ویری ویل پریپیئرڈ۔ ان کا کہنا تھا دشمن سے مقابلے کے لیے پاک بحریہ تیار تھی۔ ہم نے بہت ہی سوئفٹلی ٹرانزیشن کیا فرام پیس ٹائم ٹو دی وار ٹائم ریڈینس اینڈ ہمارے شپس ایئر کرافٹ سبمرینز وہ اپنے ریسپیکٹیو ایریاز میں پوائز تھے۔ وائس ایڈمرل راجہ عرب نواز نے کہا بحری طاقت میں برتری کے باوجود بھارت نے حملہ ہونے کی جرأت نہ کی۔ ڈیٹیل دی انیمی اور ناٹ وتھسٹینڈنگ وہ اس کی کنوینشنل سپیریورٹی تھی پاکستان نیوی کے مقابلے میں، اس کے باوجود اینمی جو ہے وہ کسی بھی مس ایڈونچر کی ضرورت نہیں کر سکا۔ قوم اپنے بہادر ثبوتوں پر فخر کرتی ہے جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن کی حرمت کی لاج رکھی۔ جبکہ یوم دفاع پر مسلح افواج کے سربراہان نے خصوصی پیغام جاری کر دیا ہے۔ دشمن کو خبردار کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ستمبر قوم کے غیر متزلزل عزم اور غیر متزلزل جذبے کا مظہر ہے۔ کوئی شک میں نہ رہے مسلح افواج ہر قسم کے خطرات سے ملک کے دفاع کے لیے ہمہ وقت چوکس اور تیار ہے۔ امن محنت سے حاصل کیا ہے۔ متاثر کرنے کی کسی بھی کوشش کا منہ توڑ اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ 60ویں یوم دفاع و شہداء کے موقع پر مسلح افواج کے سربراہان کا خصوصی پیغام۔ کہا 6 ستمبر قوم کے غیر متزلزل عزم اور غیر متزلزل جذبے کا مظہر ہے۔ ہمارے ہیروز کی ہمت اور بہادری آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ شہداء کی بہادری کی داستانیں اور میراث ہمیشہ زندہ رہے گی۔ پاکستان نے کئی گنا بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ لاہور جم خانہ میں چائے پینے کے خواہش مندوں کو عبرت ناک شکست سے دوچار کیا۔ جنگ 1965 میں تاریخی فتح کی یاد میں یوم دفاع منایا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر 1965 وہ دن تھا جب بھارتی افواج نے رات کے اندھیرے میں بین الاقوامی سرحد عبور کی، پاکستان پر حملہ کیا، لیکن پاک فوج نے دشمن کے مسموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ بھارتی فوج نے 600 ٹینکوں کی مدد سے لشکر کشی کی۔ سیالکوٹ کے قریب چونڈا کے محاذ پر دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی۔ پاک فوج نے دشمن کے 45 ٹینک تباہ کیے، کئی قبضے میں لے لیے۔ لاہور کے محاذ پر میجر عزیز بھٹی کمپنی کمانڈر تعینات تھے۔ انہوں نے مسلسل
5 दिन तक भारतीय टैंकों का रास्ता रोका और जान देकर सरजमीन पाक को दुश्मन से महफूज बनाया। पाक फौज के जवानों ने बर्री महाज पर दुश्मन का रास्ता रोका तो पाक फजाइया ने दुश्मन के तैयारों को मक्खियों की तरह मार गिराया। एमएम आलम जैसे पाकिस्तानी पायलट्स ने भारतीय फजाइया को अपने अड्डों पर छुप कर रहने पर मजबूर कर दिया। जंग में सितंबर के गाजियों और शहीदों ने जुर्रत और बहादुरी की वो लासवाल दास्तानें रकम की जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। आज का दिन हमें उस मार्के की याद दिलाता है जिसने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत तर बनाया और कौम को एक लड़ी में पिरो दिया। पाक फौज के तहत यौम दिफा की मुनासिबत से पेशावर के स्कूल में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। अफसरान और जवानों ने शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर भी यौम दिफा की मुनासिबत से तकरीबात मुनक्किद की गईं। 6 सितंबर कौमी दिफा का दिन। पेशावर के स्मार्ट स्कूल गुलबहार कैंपस में शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। जवानों ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। बच्चों ने पाक फौज के साथ मिलकर परचम कुशाई की। तलबा ने अपनी तकारीर में पाक फौज के शोहदा की कुर्बानियों को खूब सराहा। तलबा ने मिली जज्बे से भरपूर नगमे और खूबसूरत टैबलूज पेश किए। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर भी तकरीबात मुनक्किद हुई। तकरीबात में छोटे और बड़े हथियारों की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। तलबा और तालबात ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। यौम दिफा के मौके पर गवर्नर सिंध ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। कामरान खान टेसोरी की जानिब से फातिहा खानी और फूलों की चादर चढ़ाई गई। उनका कहना था कि 6 सितंबर उस तारीख साज दिन की याद दिलाता है जिसका हालिया मुजाहरा मार के हक में देखा गया। कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया और तारीख इस्लाम जिहाद और शहादतों से भरपूर है। तारीख साहबाओं की भरी पड़ी है कि उन्होंने जहाद और हक और सच्चाई के लिए शहादतें दी और उन्हीं शहादतों का तसलसल, क्योंकि हम दुनिया में वाहिद मुल्क हैं जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया और जब से लेकर अब तक ये शहादतों का सिलसिला जारी और सारी है। आज का दिन 6 सितंबर उसकी याद में हम 12 रबी अव्वल मना रहे हैं और इसके साथ साथ 6 सितंबर जिसके लिए मैं अपने तमाम उन गयूर माओं और उनके वालिदैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज उन गयूर आपको बताएं कि यौम दिफा व शोहदा पाकिस्तान मुल्क भर में कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कराची में रेंजर्स कलंदर विंग के जवान की जानिब से अपनी पेशा वराना महारतों का शानदार मुजाहरा कर रहे हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान बताएगा इस हवाले से क्या देख रहे हैं। देखिए, मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम दिफा जो है कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बहादुरी और अजीम कुर्बानी की रोशन अलामत है। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर कलंदर विंग में, जहाँ पर मेरे साथ ऑपरेशनल अफसर मेजर शहबाज साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम को आज के दिन की मुनासबत से? जी, 6 सितंबर हमें हमारे शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियाँ दिलाता है और हमें मैसेज देता है कि मुल्क का दिफाई हमारे लिए अवलीन तरजीह है। ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताइएगा, कराची साहब बड़ा शहर है, शहर में क्राइम्स होते हैं, किस तरह आपकी टीम जो वहाँ पर पहुँचती है और क्योंकि हम देखते हैं फौरी रिस्पांस होता है, कंट्रोल पर एंट्री चलती है, फ़ौरन आपकी टीम वहाँ पर ऑन द स्पॉट पहुँचती है, कोई बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो उसमें और कामयाबी हासिल करते हैं? हमने शुरू से देखा है, कोई हालिया कोई ऑपरेशन की कोई मिसाल अगर आप दे सकें। देखिए, आई विल नॉट गो इन डिटेल्स बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि रिसेंटली हमारा जो KPO ऑपरेशन है वो हमारा सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग ऑपरेशन था, जिसको अल्लाह के हुक्म से हमारे जवानों ने काफ़ी एक मौसर तरीके से उसको कामयाब बनाया और दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपने देखा कि मेजर शहबाज मेरे हमरा मौजूद थे, पाकिस्तान रेंजर्स कलंदर विंग में कमांड कर रहे हैं। हालिया दिनों आपने देखा कि हालिया साल के अंदर जो कराची पुलिस ऑफिस में अटैक हुआ था, पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के जवान वहाँ पर मौके पर पहुंचे, उन्होंने दहशतगर्दों को जो जहन्नुम हासिल करने के साथ जो जहन्नुम वाक़या जो था उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया था, उसमें पाकिस्तान सिंध रेंजर्स का बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुल्क भर में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत पूरे अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के चप्पे चप्पे में जुलूस निकाले जाएंगे। शहर शहर नात खानी की महफिल का इनेकाद होगा। पूरे मुल्क में इमारतों को हसीन रोशनियों से सजा दिया गया है। मीठे पकवान भी तैयार किए जा रहे हैं। भर की तरह हरीपुर में भी 12 रबी अव्वल के जुलूस और महफिल का एहतमाम किया जा रहा है। जगह जगह इस्तक़बालिया कैंप लगाए गए, चावल, हलवे और दूध की सबीलों का एहतमाम किया गया। सूरत हाल इस वक्त कैसी है, वहाँ पर क्या हो रहा है, बात करेंगे। आसिफ इकबाल ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ, बताएगा कैसा समा है? मुल्क
भर की तरह हरिपुर में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया और आस्ताने आलिया कादिया छोड़ शरीफ से बरामद हो चुका है। ये जुलूस पूरे शहर के मुतल्लम मकामात से गुजर कर जो है तकरीबन 3 बजे दोबारा दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया में इंतजाम पजीर होगा। जुलूस के इस्तकबाल के लिए हरिपुर शहर मुतल्लम मकामात पर जो है फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुतल्लम मकामात पर आज जो है सबीलों नजर न्याज का एहतमाम किया गया। दूध चावल और हलवे की सबीलें जो है मुतल्लम मकामात पर बांटी जा रही हैं। जुलूस के लिए शहर भर में तहसील गाजी में तहसील खानपुर में जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। रेस्क्यू 1122 के साथ दीगर महकमे यहाँ मौजूद है, जिससे गवर्नमेंट TMA की जानब से जो है म्यूनसिपल सर्विसेज का एहतमाम किया गया है। हरिपुर में तहसील गाजी में तहसील खानपुर में आज पूरा दिन जो है शाम सपहर तक जो है जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जो है इसी तरह जारी रहेगा। और नाज़रीन, हैदराबाद की क्या सूरत हाल है, इरफान आराई वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। इरफान बताएगा यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? जी, जश्न ईद मिलादुन नबी पर हर जानिब खुशियों का समा है और रैलियों में सरकार की आमद मरहबा के सदाएं गूंज रही हैं। इस वक्त हैदराबाद शहर में तिलकचाड़ी से मरकजी जुलूस जो है वो निकाला जा रहा है, जिसमें मजहबी जमातें शरीक हैं। अगर इमरान आपको दिखाएं तो इस वक्त तिलकचाड़ी से जो जुलूस निकाला जा रहा है उसके इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। जगह जगह कैंप्स लगाए जा रहे हैं और उलमाए कराम जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में आशिकान रसूल मौजूद हैं। तो जो रैलियाँ हैं ये मुख्तलिफ शक्ल में तिलकचाड़ी पर जमा हो रही हैं। मुख्तलिफ शहर के हिस्सों से मजहबी जमातें हों, समाजी सियासी जमातें हों, उनकी रैलियाँ इस कारवां में शरीक हो रही हैं। और ये कारवां बाद नमाज असर सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस कोहिनूर चौक पर मुनक्किद करेगा, जहाँ पर उलमाए कराम खिताब करेंगे। तो इस वक्त जोश और जज्बा है, बच्चे जो हैं वो सब परचम लिए हाथों में। इरफान इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बिहाड़ी में सलाम मुतासिरीन भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में शरीक हैं। खैमा बस्तियों में मिलाद की महफिल का इनेकाद, सजावट और चरागा भी काबिल दीद है। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातों का नजराना पेश किया गया। मुल्क व कौम की सलामती और सैलाब मुतासिरीन के लिए खुसूसी दुआ की गई। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाएंगे। अहम खबर को दे रहे हैं। पहली खेप जो रवाना की गई थी अमेरिका से पाकिस्तान के लिए सैलाब मुतासरीन के लिए, वो यहां पर पहुंच चुकी है। अमेरिका की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद लेकर 6 परवाजें बताई जा रही हैं जो कि पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। खैमे हैं, साफ पानी बताया जा रहा है। इसके अलावा जनरेटर्स हैं और दीगर ज़रूरी अशिया इसमें शामिल हैं। कुछ इसकी स्टिल्स मौसूल हुई हैं, देखी जा सकती हैं कि एक बार फिर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया जा रहा है। बिल्कुल मुश्किल वक्त में भरपूर साथ दिया जा रहा है। यह अहम खबर है। अमेरिका की आर्मी सेंट्रल कमांड के जरिए सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद की फराहमी, जबकि इमदादी सामान लेकर 6 परवाजें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। 6 परवाजें इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंची हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।